Greetings everyone. So today I am going to teach you Heredity and Evolution, Lesson 9, Biology, Class 10th. Alright. Now children, this chapter is little difficult, little complex, but it's very important because it also carries few questions and basically it deals in genetics. So definitely आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज सो फार यू हैव नॉट डेल्ट विद इट. आपने इनमें से कुछ ही टर्म्स अभी तक अपनी लाइफ में पढ़े होंगे इन द जूनियर क्लासेस लाइक क्रोमोसोम, है ना, बट जीन्स लाइक दिस. बट व्हाट टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर is little difficult and we have a little bit of maths also into it, so not so difficult, not that amount of maths, but yes. Okay, so heredity and evolution, this is very common all around us. You just have to open those eyes which can observe these things, है ना. Like you say that I have inherited my looks from my mom, or I have got my nose just like my dad, है ना. तो or if you even have a litter of puppies, some might be looking just like the fathers, or some might be looking just like the mother, है ना. So how does this happen? और इसके पीछे भी कितने laws हैं और इन सब की studies आज से एक century से ज़्यादा पहले, like in the 19th century it was done. So people were always inquisitive that why something is happening, and that is science. So let's begin. But to understand this chapter better, let's learn some terminologies first. First terminology that we are going to study is heredity and inheritance. Meaning is almost same. The characters which are passed, और characters के लिए हम अलग word भी use करेंगे traits. The traits or characters which are passed from one generation to another generation is known as inheritance of the characters, or this phenomena is known as heredity. ठीक है. Like I gave you example, you very proudly say no, I've got my looks from my mom, I've got my hair just like my mom, or somebody like my grandmother had blue eyes, so I have got blue eyes, things like that. Okay, so this is heredity and you have inherited those characters. जहाँ पर हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस की बात आ रही है वहां पर एक वर्ड दूसरा आएगा, वेरिएशन. नाउ व्हाट इज वेरिएशन? वी आर आवर पेरेंट्स चिल्ड्रन, लाइक मदर एंड फादर, बट वी एग्जैक्टली डोंट लुक लाइक देम, इजंट इट? वी गेट समथिंग from mother side or maternal side, or we get some characters from the paternal side. Even if you have your sibling born from the same parent, then also there are differences. So where does these differences come from? See, when you get half of the character, like I've told you earlier, we have 46 chromosomes. That is, we say 23 pair of chromosomes, isn't it? We say this, right? So ये 23 जब मिक्सिंग हो रही है, जब फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, so 46 पूरा करने के लिए you get 23 from the father and you get 23 from the mother, right? So यहाँ पर इसका मतलब है कि हर जीन का एक एक पैर है, वो पैर का आधा हिस्सा फादर की तरफ से आया है, आधा हिस्सा मदर की तरफ से आया है. तो जब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो रही है, जीन्स हो रही है, तो उसमें अब एक वर्ड आएगा डोमिनेंट और एक आएगा रिसेसिव. जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, है ना, वो कैरेक्टर भी आपको अगले जनरेशन में दिखाई देगा. ठीक है.
डोमिनेंट कैरेक्टर जैसे सपोज your maternal side has brown hair and your paternal side is black hair. We know it, black color is dominant over brown. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आएंगी. आपका क्वेश्चन बिल्कुल अगर दिमाग में आ रहा है कि कभी कभी ब्राउन हेयर हो जाता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फादर के में भी एक रिसेसिव जीन होगी और रिसेसिव मिल गए और ब्राउन कलर ही डोमिनेंट हो गया नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, तो वेरिएशन आपको समझ में आ गया, डोमिनेंट आ गया, रिसेसिव आ गया. जब हम जनरेशंस की बात करते हैं, या इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट अनदर वर्ड एंड दैट वर्ड इज ट्रेट. ठीक, दैट वर्ड इज ट्रेट. सो ट्रेट का क्या मतलब होता है? कैरेक्टर. ओके, सो कैरेक्टर में क्या हुआ, और वो कैरेक्टर्स क्या हुए, वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द हेयर, है ना, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द ईयर लोब्स, एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर और अ ट्रेट. ठीक है, so what are trait? The characters that which are transferred from one generation to another generation are known as trait. अब trait भी हमारे दो तरीके के होंगे. Yeah, we'll have two types of trait. एक क्या होगा जो आपने inherit किया है ना. One kind of trait is which you have inherited, और दूसरा ट्रेट है कि आपने अपनी बहुत ज़्यादा जिमिंग करी एंड यू डेवलप्ड योर मसल्स. जो मसल्स आपके फादर के पास नहीं थे, उन्होंने उतनी जिम नहीं करी, उतना वर्कआउट नहीं करा, उतना प्रोटीन डाइट नहीं लिया. ही वॉज नॉट दैट कॉन्शियस, बट यू आर वेरी कॉन्शियस कि आपके पास मसल्स हों, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स आपकी अच्छे से डेवलप्ड हो. आपने क्या किया, ये कैरेक्टर्स एक्वायर किया. ठीक है, you acquired those characters and hence we have two types of traits, one which we inherit, one which we acquire. Okay, so let us move in this chapter and we will study about the genetics or laws of inheritance. है ना मैम, लॉज होते हैं वो तो कानून के लॉज होते हैं. परफेक्टली ऑल राइट. सी द होल क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग हैज अ डिवाइन प्रोपोर्शन, एवरीथिंग हैज अ फिक्स प्रोपोर्शन. बट उसमें भी जैसे वेरिएशंस आते जाते हैं तो एक नया जीव बनता जाता है. दैट आई विल बी टेलिंग यू शॉर्टली इन दिस चैप्टर. एंड दिस इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन. ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हमारी और आपकी मर्जी से होगी. एवरीथिंग इज फॉलोड विथ अ लॉ, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. हु गेव दिस? ग्रेगर was this name of the scientist? He was Gregor John Mendel. आपने मेंडलिज्म की बात पढ़ी होगी. So he was Gregor John Mendel in Austria, Vienna, and he was a pastor. He used to live in a church. He tried to study. He went to a science college, but he could not clear it. So again he back, but he never stopped researching. And what plant he chose? A plant because आप देखिए ह्यूमंस में अगर हम रिसर्च करेंगे तो लाइफ स्पैन बहुत होता है, तो उतने में तो बेचारे जो रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उसकी लाइफ चली जाएगी, है ना. सो ही चोज पी प्लांट, राइट. व्हाट इज द नेम ऑफ द पी प्लांट? साइंटिफिक नेम इज पाइजम सटाइवम. आपकी जो मटर होती है, और ये पूरे साल होती है, स्पेशली अगर हम ऑस्ट्रिया, वियना जैसी जगहों की बात करें जहाँ पे इट्स अ यूरोपियन कंट्री, ठंडक पूरे साल रहती है. तो इन हिज चर्च कंपाउंड he saw that sweet peas are there. He researched on it and he saw that there are 7 very strong characters. हम लोग आपस में ह्यूमंस की बात करें तो हमारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कलर ऑफ द आईज,
ये सब जो कि बिल्कुल क्लियरली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, है ना, ट्रेट्स हैं। कलर ऑफ द हेयर, काइंड ऑफ हेयर, शेप ऑफ द ईयर लोब्स ना, कुछ लोग का ऐसे होता है, किसका ऐसे होता है, किसी का ऐसे होता है, बट वेरिएशन होता है ना। तभी आप देखिए अर्थ पे देर आर मोर देन 7 बिलियन पीपल, राइट, पर तब भी क्या है, वेरिएशन है ना, बहुत वेरिएशन है। खुद के माँ बाप की जितनी अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में ही वेरिएशन होगा, है ना। ट्विंस भी अगर आइडेंटिकल है, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो डीएनए कॉपिंग के समय में होता ही है। सो मेंडल ने, लेट्स गो बैक टू 19th सेंचुरी इन वियना। मेंडल ने देखा कि स्वीट पी के जो कैरेक्टर्स हैं, 7 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, एंड ही टुक देम। व्हाट वर दोज कैरेक्टर्स? हाइट ऑफ द प्लांट, है ना, कुछ तो बड़े टॉल थे, बड़े टॉल मतलब ट्री नहीं बन गए, दे वर कंपैरेटिवली टॉलर देन दी अदर्स। सो एक कैरेक्टर हमारा हो गया टॉलनेस, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है टॉलनेस, और जो रिसेसिव है वो है ड्वार्फनेस। दूसरा हो गया शेप ऑफ द सीड। शेप ऑफ द सीड में राउंड शेप भी था और रिंकल भी था। तो व्हाट इज द डोमिनेंट शेप? ऑफ कोर्स द राउंड शेप। फिर आ गया आपका कलर। कलर में बेटा येलो कलर जो था सीड्स का, मटर के दानों का, वो डोमिनेंट था, और ग्रीन कलर जो था वो रिसेसिव था। नोट इट डाउन, डोमिनेंट ट्रेट्स हम लोग दिखाएंगे कैपिटल अल्फाबेट से, एंड रिसेसिव ट्रेट हम लोग दिखाएंगे स्मॉल अल्फाबेट से। सो व्हाट आर द अदर कैरेक्टर्स? कलर ऑफ द फ्लावर्स भाई वॉयलेट था, ठीक है। वॉयलेट भी हम अभी यहाँ पे W लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने वाइट को प्रेफरेंस दी है, ठीक है। तो ये क्या है? वॉयलेट कलर है, और ये है वाइट। डोमिनेंट क्या है? वॉयलेट कलर है। रिसेसिव क्या है? वाइट। आप कलरिंग इतनी आपने करी होगी, यू नो इट दैट वाइट इज ऑलवेज अ रिसेसिव कलर, एनी कलर कैन डोमिनेट इट, and the truth is that white is a mixture of all the 7 colors of the Vibgyor. Anyways, let's come back, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने कैरेक्टर्स कर लिए? एक तो हाइट हो गई, ठीक है, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, येलो कलर इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, वॉयलेट एंड वाइट। इसके अलावा शेप ऑफ द पॉड। पॉड का शेप क्या है? एक आपने मटर की फली देखी होगी, ऐसी होती है, और एक आपने देखा होगा ऐसी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेटेड, ठीक है। तो इन्फ्लेटेड शेप जो है वो डोमिनेंट है, और जो कंस्ट्रिक्टेड शेप है ये आपका हो गया रिसेसिव, ठीक है। देन कलर ऑफ द पॉड। कलर ऑफ द पॉड में हमारा ग्रीन कलर जो है उल्टा होगा, यहाँ से डोमिनेंट है, और येलो कलर जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। तो आपको इतने में नहीं जाना, आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली इसमें से आता है, या इसमें इस कैरेक्टर से आता है, या इस कैरेक्टर से आता है, कि जो जनरेशन है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना मैं भूल गई, द जनरेशंस, वो हम कैसे बात करते हैं? जो पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है उसको हम बोलेंगे P1। P1 क्या हो गई? या P1 भी नहीं, P ही होती है पेरेंटल जनरेशन। उसमें एक मेल था और एक फीमेल था, क्रॉसिंग ओवर हुआ, नेक्स्ट जनरेशन आई, वी विल कॉल इट F1 जनरेशन, या आप और वर्ड्स नोट करिए, इनको हम बोलेंगे प्रोजेनी। प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, है ना, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, वी विल कॉल इट प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, ठीक है।
तो एक हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन जो कि पेरेंट थी। पेरेंट जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई वील कॉल इट प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, वील डिनोट इट एज F1। और F1 जनरेशन के बाद जो जनरेशन आई वी विल कॉल इट F2, F3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होता ही है। आप अपने, अगर आपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, नहीं देखा होगा, फोटो में देखा होगा, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जरूर देखा होगा, पेरेंट्स को देखा है, खुद को देखिए, 10 साल बाद आपकी भी प्रोजेनी आएगी, यू विल सी दैट देयर इज अ लिटिल वेरिएशन, है ना। वेरिएशन 1 हुआ, यहाँ वेरिएशन 2 हुआ, यहाँ वेरिएशन 3 हुआ। लिटिल वेरिएशन इज एडिंग इनटू एवरी नेक्स्ट जनरेशन और प्रोजेनी। और अगर हम इसको सपोज करिए 5000, 4000, 5000 ईयर्स के बाद में हम देखेंगे, तो ये जो लिविंग क्रीचर था और ये जो लिविंग क्रीचर है ना, ये जो लिविंग क्रीचर था और अब जो सपोज एक लिविंग क्रीचर ये था, ठीक है, और अब जो 4-5 हजार, 10,000, 20,000 साल के बाद में जो भी लिविंग क्रीचर आ रहा है वो मे बी उसका शेप दूसरा है ना। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ एवोल्यूशन, है ना। हम लोग इतना तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमंस की ही एंसेस्ट्री देखिए, है ना, तो आप देखेंगे कि पहले क्रो-मैग्नन था, निएंडरथल था, होमो इरेक्टस इरेक्टस आया। तो पहले आदमी भी जो था, ह्यूमंस थे, कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो मंकी थे, चिंपैंजीज थे बेसिकली, है ना। तो उनके कैरेक्टर्स हमारे कैरेक्टर्स में रिजेम्बलेंस है, बट ओवर द इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स क्या हुआ, हमारे अंदर वेरिएशंस ऐड होते गए। और आज का जो ह्यूमन है, आप चिंपैंजी से या इवन प्रीवियस ह्यूमन से आप कंपेयर करिए, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये जो पूरी ग्रोथ आती है, चेंजेस आते हैं, वी कॉल अ वर्ड इवोल्यूशन। ओके, दिस इज द इवोल्यूशन। तो अगर आपकी अब टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है, तो लेट अस मूव टू द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया? यस, डाउट्स? यस, प्लीज आस्क। I don't understand the experiment, plant experiment, वो मेंडल वाला ना, तो वही कराने जा रही हूँ बेटा। आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली। ठीक है, सो पहला जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया। और पीज ही क्यों सेलेक्ट करें? क्योंकि पीज की लाइफ स्पैन जो होता है वो 3-4 महीने का होता है ना। तो एक साल में वो 3-4 जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं, है ना। P1, P2, P3, P4। सो ही कैन डिड्यूस। इन साइंस वी डिड्यूस, है ना। हम ऑड्स हटाते जाते हैं एंड वी डिड्यूस। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करा, वो उन्होंने टॉल ट्री और टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लिया। तो टॉल प्लांट के जो हमारे कैरेक्टर्स थे, उसको जो जीन्स थे, भाई 2 क्यों दिखा रहे हैं हम, है ना, क्योंकि पैर होता है उनका। जब हमने क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट से, अब हम दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर है। प्योर को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। प्लीज नोट इट डाउन। प्योर विल बी नोन एज होमोजाइगस कंडीशन। होमो का मतलब है सेम, है ना। तो ये होमोजाइगस कंडीशन थी हमारी पेरेंट जनरेशन की। और जब हमने इनका क्रॉस कराया, तो आप देखिए क्या कॉम्बिनेशंस बने। इस वाले टी का इसके साथ भी हुआ और इस वाले टी का इसके संग भी हुआ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस बने। अभी हम तो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं ना,
कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर इस वाले टी का भी इस टी के संग में एक हुआ और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बना। ठीक है, अभी सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये। अच्छा, एक चीज और लेंगे हम, मोनोहाइब्रिड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मोनो एक कैरेक्टर लिया है। वी हैव टेकन जस्ट वन कैरेक्टर, सो इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड तो अभी इसके बाद आएगा, बट इट इज मोनो। ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग वन कैरेक्टर इन द पेरेंट जनरेशन। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, टी 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 एंड टी टी। ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, अब अगर नहीं समझ में आएगा अभी होने दो। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो हमारे चारों कॉम्बिनेशंस बने जीन्स के, इनका अपीयरेंस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा क्या है, कैपिटल टी। और कैपिटल टी हर जगह दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी F1 जनरेशन है वो हमको दिखेगी कैसी, टॉल, ऑल टॉल। ठीक है, जो हमारी F1 जनरेशन का फिनोटाइप है, अनदर वर्ड प्लीज नोट इट डाउन, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। फिनो, फर्स्ट है फिनो, फर्स्ट है फिजिकल, PH। ठीक है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या हमें दिख रही है, ऑल आर टॉल। तो यहाँ पर मेंडल जी का फर्स्ट लॉ आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कि दोनों कैरेक्टर्स में, ट्रेट्स में जो भी डोमिनेंट जीन होगी, जो हमको उसका फिनोटाइप होगा वो वही दिखेगा, टॉल, ऑल टॉल। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं एक कैरेक्टर और ले रही हूँ। यहाँ पर हमने लिया वाइट। ठीक है, F1 जनरेशन में ये हमारे थे वायलेट और ये हमारे थे वाइट। एक आपको और इजी तरीका मैं बता दे रही हूँ, पुनेट क्रॉस इसको कहते हैं। ठीक है, तो पुनेट क्रॉस में क्या होता है, ओके वी रीच द लिमिट, राइट। ओके, सो पुनेट क्रॉस में क्या होता है कि जो हमने ये मिक्सिंग करी थी उसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आई चेंज द कलर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। लेट मी चूज ब्लू, राइट। सपोज ये मेल का है और ये फीमेल का है। ठीक है, तो आपने मेल के डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, कैपिटल W रखा और वाइट के लिए हमने स्मॉल w रखा। ठीक है, अभी आप इनकी मिक्सिंग आराम से कर सकते हो, कैपिटल स्मॉल, ये आपका होता है पुनेट क्रॉस। ठीक है, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल। आई होप दिस इज मच क्लियरर टू यू, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑल आर, ये कौन सा हमारा ट्रेट था, वायलेट। ठीक है, और ये कौन सा था हमारा, वाइट। So we can see that all are violet. क्यों? क्योंकि हमारी जो डोमिनेंट जीन थी वो कैपिटल W इन चारों कॉम्बिनेशंस में है। Alright. So this is the law of dominance. आपको एग्जाम में ये आता है, आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें हर साल किसी ना किसी कैरेक्टर को लेके आता है। जैसे एक साल पहले आया था आपका ये वायलेट और वाइट को लेकर आया था, कभी आपका टॉल एंड रफनेस को लेके आएगा, कभी आपका कलर ऑफ द सीड आ जाएगा। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। एट टाइम्स दे डोंट इवन डिस्कस इट इन द टर्म्स ऑफ प्लांट्स। वो आपको रैबिट की कोट का दे सकते हैं ना, कि रैबिट, एक पेरेंट रैबिट था उसका स्किन कलर ब्लैक था, दूसरा पेरेंट रैबिट था उसका स्किन कलर क्या था, सपोज ब्राउन था। तो व्हाट इज डोमिनेंट कलर हियर, ब्लैक। तो आपको F1 जनरेशन में तो आप बता दोगे कि ऑल वर ब्लैक, बट व्हाट विल यू डू इन द F2 जनरेशन, लेट अस सी। F1 जनरेशन हम लोग प्लांट्स से ही करेंगे। F1 जनरेशन में क्या हुआ, हमारे पास
प्लांट जो था उसमें हमारा या T1 लॉ ऑफ डोमिनेंस में बिल्कुल समझा रही हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में सपोज हमारे पास, चलो यहाँ से फिर से समझो, अगर हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है, वो ये है, और रिसेसिव कैरेक्टर जो है दबा हुआ, कुचला हुआ, समझ लो, अभी ये भाषा समझ ही जाओगे, है ना। रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास था ड्वार्फ, ठीक है। तो ये थी टॉलनेस, ये थी ड्वार्फनेस। इनका जब हमने क्रॉस कराया तो जो हमें पुनेट स्क्वायर से आप काम करिए, आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने डोमिनेंट रखा, यहाँ पे रिसेसिव रखा, यहाँ पे मेल था, इधर पे फीमेल कैरेक्टर था। लेट्स कंबाइन देम। F1 जनरेशन वी सॉ दैट ऑल आर टॉल। जो फिनोटाइप था वो सारे के सारे जो थे वो टॉल थे, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या था? ऑल वर टॉल, ऑल प्लांट्स वर टॉल, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट था उसने चारों को रूल किया। अब आता है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हुआ? ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, F1 प्रोजेनी थी, ठीक है। हमने नेक्स्ट जनरेशन में क्या कराया? लेट मी चेंज द कलर। या हमने नेक्स्ट जनरेशन में क्या किया? नेक्स्ट जनरेशन में हमने जो पेरेंट लिए, है ना, अब प्योर नहीं लिए, हमने हेट्रोजाइगस लिए। तो ये क्या थे? ये थे हमारे होमोजाइगस, ऑल वर सेम, प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, ये होमोजाइगस थे। ये क्या कंडीशन है? ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, ओके। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो थी ये हमारी F1 जनरेशन थी। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ क्रॉस बिटवीन दोनों पेरेंट जो है वो हमारे F1 जनरेशन के हैं। मतलब आइए देखते हैं व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स जो हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन थी F1 की, हमने अब दोनों पेरेंट उधर से लिए, ठीक है। यानी जो हमारा मेल था वो भी हेट्रोजाइगस था और फीमेल थी वो भी हेट्रोजाइगस थी, ठीक है। लेट अस डू देयर क्रॉस। इफ वी डू इट थ्रू द पुनेट क्रॉस इट इज ऑलवेज इजी, ठीक है। So let us, it's better we do it through the Punnett cross and suppose हमने यहाँ पर हमने मेल को रखा और इस एक्सिस पे हमने फीमेल को रखा। What combinations are being made? Let us see. T, 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 small t, capital T, small t and small t, small t, ठीक है। ये क्या हो गया? ये तो आप देखिए सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया, कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो गए, है ना। अब हम लोग इनका देखते हैं जरा रेशियो क्या बन रहा है। कैपिटल टी ये हो गया हमारा टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये भी है टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये भी है टॉल। स्मॉल टी क्या हो गया? ड्वार्फ, है ना। तो अगर हम इसका, ये तो कैरेक्टर्स हमारे सेग्रीगेट हो गए। ये है हमारी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या है? जहां पर हमने F1 जनरेशन में जो हमें हेट्रोजाइगस हाइब्रिड्स मिले थे उनका क्रॉस हमने कराया और हमें क्या मिले पौधे? 3 टॉल दिख रहे थे और 1 ड्वार्फ था। तो इसका फिनोटाइप जो हुआ, जो फिजिकली विजिबल हुआ, फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ।
लेकिन अब हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखें। मैम आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स लेके चली आ रही हैं। जीनोटाइप, ओके, लेट अस सी द जीनोटाइप। जीनोटाइप में हमें क्या दिख रहा है? जीनोटाइपिक रेशियो क्या दिखा? जीन्स लेवल का रेशियो। जीन्स लेवल का रेशियो हमें क्या दिख रहा है? प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर डॉर्फ। तो वी कैन से दैट हमारा जीनोटाइप जो था वो था 1:2:1। ये आपके क्वेश्चंस जेनेटिक्स के इस तरीके के आते ही आते हैं। 3 नंबर या 1 नंबर में आना ही आना है, 5 में भी आ सकता है। पार्ट्स में आते हैं ना क्वेश्चन, उसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का, आधे नंबर का, और क्योंकि पेपर लेंदी होता है तो हाँ जी 2 मिनट बस, 2 मिनट। ओके, सो दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक में 3 हमें जो फिजिकली दिख रहे हैं, 3 टॉल 1 डॉर्फ। जब हम उनका जीनोटाइप देखते हैं तो एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक प्योर डॉर्फ है। जीनोटाइप जो है, जीनोटाइपिक रेशियो है, वो है हमारा 1:2:1। ये मेंडल का आपका दूसरा सेकंड लॉ आ गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैरेक्टर्स जो है वो सेग्रीगेट भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बोला कि आपके 2 जनरेशन पहले आंखों का कलर किसी का ब्लू था, 2 जनरेशन में नहीं था, लेकिन उस ब्लू कलर की जीन कहीं रिसेसिव थी। वो रिसेसिव जीन जब दूसरे रिसेसिव जीन से मिली और वही वाला जाइगोट जो है वो आगे बढ़ गया, तो क्या हुआ? प्योर ब्लू कलर आ गया आंखों का, ठीक है। वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी तरह से होता है। So this is the second law of segregation, and after this I will teach you about the third law.